Hello. Good evening, and welcome to Fellowship Funchayat episode number 21. And so far, for the last 20 episodes that we have done, we have been able to cover 22 states and 4 union territories. And as this fellowship comes towards its end painfully, so finally we have fellows from 2 states we have not been able to cover so far. So, firstly, I'd like to welcome Payal Gupta, who is MGNF for New Delhi. Secondly, Swadesh Sritam Das, MGNF for Jharsuguda district of Odisha. And then joining them are Pooja Choudhary, MGNF for Gwalior district of Madhya Pradesh. Next, we have with us Satyaveda, who is MGNF for Warangal rural district of Telangana. And finally, we have Aparajita, who is MGNF for Agra district of Uttar Pradesh. So let's start the discussion for tonight. Firstly, Swadesh. Yeah. You've already knew my name, like I'm Swadesh Sritam Das, and I've been posted at Jharsuguda district, Odisha. But basically, I am from Baleshwar district. You have heard about the train accident, so Yeah. I belongs to that district only. So okay. So the things basically we are doing the same things here, and before coming to the MGNF, I was like a engineer, senior engineer at L&T, and I switched. As everyone know, like the working culture, so Let's say I that on the can't handle that. Yeah. Okay. So I can't handle that much of like work. So yeah. Also, I was like, as Vedanta is also preparing for the UPSC, so I was also preparing for the UPSC. I don't get a time, so I switched to that similar kind of department here, and we are doing the same things like the skilling, uplifting the skilling activities and the socio-economic like scenario of the district. So Jharsuguda is basically like an industrial district, like more than 20 to 30 large scale industries are there. So even Jharsuguda is famous for the large scale industry named Vedanta, alumina. So there are like not so many places to visit, but yeah, some of the places you can visit like for that is one is Chandi Mandir, one is Koil Gugar, and one is Dakshin Kali Temple, which is a replica of the original Dakshin Kali Temple of Kolkata. okay. So these are the places you can visit, and like it Is there a is reason more or why the less. replica was made of the temple? Actually, some of the Marwadi communities are there. Most of the communities are like the businessmen here. So they have been established since like 50, 60 years here. And as we know, like they do some kind of good, like Ram temple and all. In Baleswar also, they have been establishing this thing. So here also, they exactly like laid the stone of like the exact replica of Dakshin Kali temple. You can like Google it. You can get to know about. Okay. So these are the places you can visit. But Jharsuguda is more on like polluted area. So everyone doesn't prefer to like go outing for many times. Like and these are the introduction about the district and all. And working and all. I think this is in the second phase. I think Yeah, sure. project and all. Yeah. Sure. Pooja? Yeah. Yeah, so I am actually natively from Devas district, which is near Indore. इंदौर से बिल्कुल ऐसे 30-35 किलोमीटर पे देवास है. तो वहां से मैं हूँ एंड आई हैव डन माय बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग इन कंप्यूटर साइंस. और उसके बाद मैंने गांधी फेलोशिप किया एंड एवरीबॉडी वुड नो दैट. तो गांधी फेलोशिप फॉर 2 years इन श्रावस्ती डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी. देयर आई वर्क. उन लोगों के साथ में बहुत अच्छा बॉन्डिंग था, बहुत अच्छे से काम किया. And then I went to Piramal Foundation for almost 4 to 5 months in a central role, program leader. And then I came to this Mahatma Gandhi National Fellowship. So yeah, this is all about me. And about your district? Yeah, so I am in Gwalior district right now. तो एमपी में ऐसा है कि 4 बहुत ही मेजर सिटीज हैं, ठीक है. इंदौर, भोपाल, जबलपुर और ग्वालियर. तो ग्वालियर इज वन ऑफ द मेजर सिटीज.
तो यहाँ ऐसा होता है कि यहाँ पे जब भी हम बात करते हैं कि चलो कुछ डेवलपमेंट करते हैं, इज देयर समथिंग टू वर्क ऑन और समथिंग, तो नहीं, इधर सब डेवलप्ड है। उनका ऐसा रहता है यहाँ पे सब है, यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। और ग्वालियर बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस भी है ऑब्वियसली, सिंधिया, एंड देयर इज दिस जयविलास पैलेस, द सिंधिया म्यूजियम, True. and there is the Gwalior Fort, which is very famous. But ठीक है, मुझे ऐसे बोलना तो नहीं चाहिए, बट आई डोंट सी एनीथिंग वेरी, वेरी यूनिक इन दैट कि बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसा कुछ। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू विजिट ऑल्सो। आप एक दिन में ग्वालियर फोर्ट कभी नहीं विजिट कर सकते। हाँ, Oh. नियर बाय प्लेसेस आर वेरी नाइस। जैसे मुरैना में, वैसे मुरैना बहुत बदनाम है, वैसे ग्वालियर भी बदनाम है कि मतलब बहुत ऐसे होता है कि क्राइम बहुत ज्यादा है, और पिस्तौलें चल जाती हैं, गन्स चल जाती हैं। मुरैना में तो बहुत ज्यादा है ये सारी चीजें। मुरैना, भाई, ग्वालियर और नॉट वेरी गुड इन फेम। तो मुरैना में बट घूमने की प्लेसेस हैं कुछ, यहाँ से उसको ग्वालियर में ही कंसिडर किया जाता है, विच इज कॉल्ड मितावली पड़ावली। आई रिसेंटली विजिटेड। मितावली पड़ावली का ऐसा है कि वो वहाँ पे एक बटेश्वर मंदिर करके है, जो उनको बहुत पहले वहाँ कुछ स्कल्पचर्स और ये सब कुछ मिला था, तो दे आर री क्या रेनोवेटिंग इट, उसको फिर से बना रहे हैं वो लोग। स्टोन, क्योंकि ग्वालियर में स्टोन का काम होता है, यहाँ तो डीओपी भी वही है, तो स्टोन का बहुत काम होता है, माइनिंग होती है, तो फिर मूर्तियां बनती, स्टोन कार्विंग होती है, तो दे आर डूइंग दैट देयर। तो वो बहुत फेमस है। बाकी ग्वालियर में बहुत कम, मतलब इनसाइड ग्वालियर बहुत कम ऐसी प्लेसेस हैं जहाँ पे आप बहुत ऐसे इंटेंसिवली विजिट कर सकते हो, बट कुछ कुछ चीजें बहुत अच्छी हैं। मतलब सिटी के हिसाब से इट इज वेरी नाइस, देयर आर मेनी ऑप्शंस टू एक्सप्लोर। आई एम नॉट गेटिंग बोर्ड हियर एटलीस्ट, so that is there. And New Delhi. Fine. Okay, so hi guys, my name is Payal Gupta and I've been allotted the New Delhi district and Nicobar district with diya tha, but ministry does not want fellows to actually go to these districts as in the islands, Lakshadweep and Andaman and Nicobar. So we haven't visited those places yet. And correspondingly हमने भी मतलब starting के 3-4 महीने काम किया है, but उसके बाद हमने कोई और काम नहीं किया है वहाँ का। रिगार्डिंग न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट, तो हाँ, यहाँ पे तो एज यूजुअल सबके साथ ही हम लोग नवंबर से प्लेस्ड है। इन टर्म्स ऑफ माय पर्सनल प्रोफाइल, मैंने भी बीटेक किया है सीएसई में, एनआईटी नागपुर से किया है। उसके बाद मतलब अराउंड 1.5 ईयर और सो मैंने प्राइवेट एमएनसी में काम किया है, एंड देन यूपीएससी किया लाइक एवरीवन एल्स। तो हाँ, यूपीएससी भी दिया है, कपल ऑफ स्टेट सर्विसेज के इंटरव्यूज भी दिए हैं, आरबीआई का भी दिया है, बट ठीक है। उसके बाद 4 साल जो काफी मैंने टाइम स्पेंड किया अपनी यूपीएससी की जर्नी में, देन आई फेल्ट कि पढ़ने तो नहीं आई थी काम करने आई थी, बट पढ़ने नहीं आई थी समहाउ। जब हम मे बी रोमांटिसाइजेशन ऑफ यूपीएससी कह लो या जो भी कह लो, इस फेज में आते हैं तो पता नहीं होता कि इतना टाइम भी लग सकता है। तो एटलीस्ट उस टाइम पे मुझे तो इतना आइडिया नहीं था। आफ्टर कमिंग हेयर ऐसे 4 साल पूरे अच्छे से दे दिए, फिर आई रियलाइज कि नहीं, पढ़ने तो नहीं आई थी मैं तो फिर आई लेफ्ट दीज थिंग्स, आई अप्लाइड इन अ लॉट ऑफ प्राइवेट कंपनीज। कहीं ये 4 years का गैप वाज टू मच फॉर एनीवन टू हैंडल। देन अल्टीमेटली आई जॉइंड अ कोचिंग इंस्टीट्यूट एंड फिर वहां से धीरे धीरे कुछ कुछ फेलोशिप्स में अप्लाई किया, फिर यहाँ पे हुआ। So that is that. Apart from that, regarding my district, so दिल्ली इतनी छोटी जगह है, बट दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स है। मतलब मुझे तो नहीं पता था, दिल्ली न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट ज्वाइन करने से पहले मुझे नहीं पता था कि दिल्ली में 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ऑलरेडी इतनी छोटी जगह है। तो हाँ, मतलब जैसे लोग को पता नहीं है, वैसे इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी कह लो, डिस्ट्रिक्ट बाउंड्रीज बहुत ही फ्लूइड हैं। देयर इज नॉट अ लॉट ऑफ वर्क दैट इज डन एट अ डिस्ट्रिक्ट लेवल, इफ आई कैन से सो। प्लस वही है, अब न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट नाम से ही थोड़ा लग रहा है, इट इज द लुटियंस दिल्ली, एंड डीएम ऑफिस इज एक्चुअली एट द इंडिया गेट। इंडिया गेट के जस्ट बगल में डीएम ऑफिस है, एंड उसके बगल में यूपीएससी है सो एवरी डे व्हेन यू गो टू ऑफिस यू कैन It सी just won't let you move on, you know. It just I won't. thought that will affect me a lot, हाँ. but then somehow maybe because अब वो हो गया था ना, या तो आप कोई चीज बहुत शिद्दत से करते हो, बट जब आप छोड़ देते हो फिर आप शिद्दत से ही छोड़ देते हो, मुझे लगता है। तो हाँ, उसके बाद वो फील नहीं हुआ उतना। स्टार्टिंग में लगा था कि यूपीएससी के बगल में है, आई सी पीपल, बुरा लगेगा क्या या जो भी, बट इतना नहीं लगा कुछ। बट ये है कि हाँ, आप लोगों को देखते हो, यू जस्ट होप कि एटलीस्ट उनके ड्रीम्स सच्चाई में बदल जाएं, तो हाँ, दैट इज देयर। सो हाँ, न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट में इट्स मोस्टली
योर लुटियंस दिल्ली, योर पार्लियामेंट, एंड देन इंडिया गेट है, फिर सारे एमपीज के बंगले हैं, सारे एम्बेसीज हैं, एंड देन देर इज एयरपोर्ट. सो एयरपोर्ट और ये वाले एरिया को लिंक करने के लिए बीच में जितना एरिया आता है वो है न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट. सो देखा जाए तो Most काम challenging district in terms of finding beneficiaries for skill development, right? I thought so, but I Yeah. think that is also a silver lining because beneficiaries are actually located in a very small region. तो ऐसे Right. बहुत घूमना नहीं पड़ता है in Uh-huh. terms of finding beneficiaries. बट वही है, मतलब अब संकल्प स्कीम के अंडर हम लोग आए हैं, बट पैसा तो अभी तक आया नहीं है स्कीम के अंडर दिल्ली में. So there's actually nothing. ठीक है, I think this I'll visit this in the second part. Sure. But हाँ, regarding the work and all. Apart from that, हाँ, होटल इंडस्ट्री काफी है, एयरपोर्ट के आसपास की काफी ज्यादा होटल इंडस्ट्री है. And then New Delhi district is, I guess, the smallest district, both in terms of area and population also. तो बहुत ही कम है. And you have a lot of tourist sites. इंडिया गेट है, पार्लियामेंट है, फिर राष्ट्रपति भवन, फिर मार्केट प्लेसेस के लिए सरोजनी मार्केट, कनॉट प्लेस, Very nice. जनपद, ये सब हैं. मॉल्स वॉल्स भी हैं कुछ कुछ. बट ठीक है, हाँ. आई गेस दिस इज इट रिगार्डिंग द डिस्ट्रिक्ट. Aparajita? Hi everyone. First of all, thank you Vedant for inviting me. And मैंने to be very frank इससे पहले पंचायत देखा नहीं था. तो वेदांत ने जब invite किया था तो मैंने पूछा यार करना क्या है इसमें. So about my education, so I did my bachelor's and master's from Tata Institute of Social Sciences, तुलजापुर. Rural campus था हमारा. It's like neighboring taluka for me. Okay. I mean, Latur, yeah, I've been to Latur. Like we Yeah. used to go there for 1 day field visit. uh, And I have so many friends from there too. So bachelor's in social sciences, then from the same campus, I completed development policy planning and practice in my master's. So uske baad, I worked for Odisha Livelihood Mission. Mhm. For a year, I was at like state office में थी मैं. अराउंड 4 months मॉनिटरिंग एंड इवेल्युएशन में. तो वहाँ पर ओम्बा डीसी करके एक प्रोजेक्ट है, मिनरल बेयरिंग एरियाज डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन. सो आई वाज लुकिंग आफ्टर दैट फॉर द 4 districts and 17 blocks. तो फिर लेकिन मजा नहीं आ रहा था वहाँ पर, क्योंकि फील्ड पे आदत पड़ी थी 5 साल से वही पढ़ाई, फील्ड वाली, तो बिल्कुल मजा नहीं आ रहा था. सो आई टुक ट्रांसफर टू कोरापुट डिस्ट्रिक्ट. तो वहाँ पे आई वर्क, मतलब बहुत सारे एरियाज में काम किया. वहाँ का उड़ीसा का एसएचजी डिपार्टमेंट इज ऑसम. उड़ीसा, राजीविका, और यूपी में तो खैर कुछ है नहीं उस तरीके से, बट उड़ीसा में बहुत अच्छे नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गए. तो वहाँ पे आई वर्क फॉर द न्यूट्रिशन गार्डन, मोपकारी बगीचा करके प्रोजेक्ट है, और SVEP फूड सर्विस एंटरप्राइज का प्रोजेक्ट प्रपोजल और उसको सब डेवलप करवाना. मतलब काफी काम था. एंड आई वाज टीम लीड फॉर द कोरापुट कॉफी. सो अगर आप लोग गूगल पे जाके देखोगे तो आजकल फेमस हो गई है कोरापुट कॉफी. बेस लाइन सर्वे एंड ऑल ऑफ दैट. यंग प्रोफेशनल्स को उतना क्रेडिट, उतना क्या बिल्कुल क्रेडिट नहीं मिलता है, बट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था. तो उसमें नंदपुर करके एक जगह है, वहां पे अरकू वैली के बहुत पास है कोरापुट. सो अरकू तो फेमस हो ही गया है, बट कोरापुट अभी इतना फेमस नहीं होता, अब धीमे धीमे हो रहा है कोरापुट. तो उसमें काम किया. और भी कुछ लाइवलीहुड के काफी प्रोजेक्ट्स आते रहते हैं वहां पे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेज पे पहुंच चुका है उड़ीसा का लाइवलीहुड मिशन. तो उन सब चीजों पे काम किया. उसके बाद फिर घर आना था. लखनऊ इज माई नेटिव प्लेस. तो ऐसा होता है यूपी जाना यार, बहुत दिन हो गए. बट फिर उसके बाद फिर यहाँ पे मेरा 2 जगह हुआ था. EDII अगर आप लोगों ने सुना होगा, एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया. तो उस वो अहमदाबाद में थी. Ahmedabad, yeah, right. MGNF में हो गया. तो ये यूपी में थी. तो घर वालों ने भी बोला यार आ जाओ, बट ठीक है फिर आ गए. फिर ज्वाइन कर लिया. वो IIM वाला जो चीज थी वो थोड़ा सा हिट की थी कि चलो यार सही है. IIM बैंक मेरे दिमाग में बैंगलोर था,
मेरे को पता नहीं था कि ये स्टेट वाले आईएम्स को दे देंगे डिपार्टमेंट हम एकेडमिक मॉड्यूल का। तो बैंगलोर वो एक्साइटमेंट अलग था, बैंगलोर आईएम में जाएंगे वहां पे एकेडमिक मॉड्यूल होगा, लेकिन पता चला कि लखनऊ में ही है। तो वहां पे मतलब आधा टर्न ऑफ तो वहीं पे हो गया था, बट ठीक है। अब आ गए तो अब ज्वाइन कर लिया है, दूसरी जॉब को लात मार दी है, तो अब ज्वाइन तो करना ही था। फिर ज्वाइन किया बहुत एंथुजियाज्म के साथ, बट फिर वो एंथुजियाज्म कहाँ गया वो नेक्स्ट राउंड में जब बात करेंगे तो करेंगे फिर बस। Yeah, you have to describe your district, Agra. अच्छा हाँ, वो आगरा, तो आगरा सब लोगों ने मतलब पता ही होगा, आगरा में ताजमहल है और भी कई सारी चीजें हैं आगरा में। सिकंदरा बाग है जहाँ पे अकबर का वो मरने के बाद उन्हें दफनाया गया था। एक आई थिंक लॉर्ड हेस्टिंग की वाइफ ने ब्लैक ताजमहल बनवाया था उनके लिए, तो वो भी है छोटा सा। आई एम नॉट श्योर हेस्टिंग थे कि कोई और थे, लास्ट लास्ट के थे वो। तो Black Tajmahal, like, हाँ, ब्लैक ताजमहल ब्लैक स्टोन से बना हुआ है। oh, that's और interesting. या और आगरा में शूज है, लेदर इंडस्ट्री, शूज बहुत बनते हैं, शूज के लेदर के प्रोडक्ट्स बहुत बनते हैं, लेदर नहीं बनता है आगरा में। लेदर बाहर से आता है, दुबई वगैरह से आता है लेदर, और बाकी ईस्टर्न कंट्रीज से आता है। कानपुर से पहले आता था, वो बंद हो गया अब। आगरा में ये इनले मार्बल का काम होता है, जिससे ताजमहल बना हुआ है पूरा। तो उसका काम मतलब बहुत ज्यादा, वो काम ना मुस्लिम पॉपुलेशन का बहुत ज्यादा उसमें वो चीज है, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, न्यू जनरेशन उनकी करना नहीं चाह रही है वो काम, क्योंकि पैसा नहीं है। प्लस जो स्टोन्स आते हैं वो फॉरेन कंट्रीज से आते हैं और जयपुर के साइड से आते हैं, कोरल्स वगैरह आते हैं जिनको मतलब बहुत मेहनत लगती है, उसको घिसना पड़ता है, फिर शेप देना पड़ता है। मतलब छोटा सा आप समझ लो 2 सेंटीमीटर रेडियस का भी अगर कोई स्टोन पे वो लोग कुछ बना रहे हैं, तो उनको वो बनाने में 15 डेज लग जाते हैं। प्लस पहले कारीगर होते थे, अब कारीगर उतने हैं नहीं, और इंडियन पॉपुलेशन इतना खरीदती नहीं है, फॉरेनर से खरीदते हैं। एंड आफ्टर कोविड पैसा नहीं है, और जो लोग इस आर्ट को जानते हैं, आई वुड से क्राफ्ट्समैन, जो लोग जो क्राफ्ट्समैन जानते हैं, वो खुद इतने फिनेंशियली स्टेबल नहीं है कि वो चीजों को खरीद सके। तो जो मिडल मैन था वो पैसे दे नहीं रहा है अब, क्योंकि डिमांड नहीं है उतनी। और कुछ ही लोग हैं जो हेरिटेज के नाम पे चीजें बन रही हैं, जा रही हैं, लोग प्रमोट करना चाह रहे हैं लोग। अर्बन लाइवलीहुड मिशन हैं जो अदर एनजीओस के साथ मिलके काम कर रहे हैं, बट इतना कुछ हो नहीं रहा है। तो इट्स लाइक कि आने वाले उनके अभी के जो जनरेशन है 40-45 के हैं, और आने वाले जो जनरेशन, एक जनरेशन या 2 जनरेशन उसके बाद ये काम शायद दिखना बंद हो जाए। मतलब इट्स अ बिग स्टेटमेंट, बट शायद उतना उस स्केल पे ना दिखे, क्योंकि नहीं है, पैसा नहीं है उनके पास। Right. और ये भी चीज है कि वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनका अगर कॉस्ट 1000 मान लीजिए लग रहा है, वो मार्केट में वही चीज 10,000 में 15,000 में बेची जा रही है, तो जो मार्जिन है वो नहीं मिल पा रहा है। एंड प्लस एक चीज जो मुझे सुनने को मिली थी वहां पे, आई एम नॉट श्योर ये कितना पक्का है ये चीज, कि जो मुस्लिम क्राफ्ट्समैन हैं वो लोन नहीं लेते हैं। तो जो लोन की स्कीम चल रही है बनाने के लिए, वो उनके ऊपर लागू होती ही नहीं है, उनके रिलीजन में नहीं है कि उनको loan लेना। The payment of interest, वो रिबा हाँ इनसे बुलाया जाता है, that it's हाँ, blind and right. जो आई एम नॉट वेरी अवेयर ऑफ दैट, बट जो उन्होंने मुझे बताया। थर्ड, जरदोजी का काम बहुत होता है यहाँ पे। तो आप लोगों ने देखा होगा जब तनिष्क वगैरह में हम जाते हैं और बड़ी बड़ी शोरूम्स वगैरह में जाते हैं, तो वो पैकेट्स में जिसमें रिंग्स देते हैं, पाउच टाइप के नहीं होते हैं, उसमें कढ़ाई होती है, तो उस तरीके की कढ़ाई बहुत होती है। प्लस जूतीस पे जो कढ़ाई होती है, हाँ, जो मोती से छोटी छोटी कढ़ाई होती है, वो यहाँ पे बहुत ज्यादा होती है। okay. बड़े मार्बल आर्टिकल्स जो हैं वो बहुत बनते हैं। एंड शू इंडस्ट्री में तो Yeah. बड़े
है और छोटे मतलब होम बेस्ड भी है और इंडस्ट्रियलिस्ट भी है सारा। तो मेरे को लग रहा है कि आगरा से ही पूरी दुनिया में शूज जा रहे हैं लेदर के विजिट करने के बाद इंडस्ट्री। तो ये है मोटे मोटा यही है, प्लस मेट्रो आ गई है अभी आगरा में रिसेंटली जिसकी वजह से बहुत ट्रैफिक होता है और यही सब है। Okay, finally, Satyaveda. Yeah, hi everyone. And thanks Vedant for not letting me escape. I mean, I mean it's been great. Like I want to be, but I have been just hesitant. So yeah. Hello. Yeah, you're Yeah. audible. You're So yeah, so I have done my Bachelor of Arts and graduated in 2019 in Hyderabad. So and then I got into UPSC preparation. Now it's sounding like cliche after like all of you like spoke about UPSC. So like MGNF has become like a Embarrassing. camp for all the UPSC people. Yeah, it's like needless to mention. Yeah, I mean, just a while ago, I was talking to a friend, and I was telling there are also like people who has finished their MBBS and doing fellowship, and he was like, why do they do MBBS and come to fellowship? I was like, there is this UPSC in the middle. There is a bridge, MBBS to UPSC to fellowship. Yeah. So and then after I've done like 1.5-2 years of like full-time preparation, and then it got like so monotonous and demotivating. So I thought maybe I should try my hands at some work and then apply to fellowship. So and I'm posted in Warangal rural district. So it is like the first time I'm being to this place. And earlier it was a Warangal region and then bifurcated into 6 districts, like in 2016. Yeah, so it's like Warangal is the city, and now the boundary line is it just passes through the city, and it is called Warangal rural one side, Warangal urban one side. So it's like you can stay at 2 places at one time. So so I'm allocated to Warangal rural district, but the district collectorate, district officers, everything are still in Warangal urban district. So the administration works from urban district. So so even I stay at urban district because It's sort of it is like the urban. Telangana Andhra situation where the Hyderabad is still the capital. Yeah. So the construction is still happening. So now I stay in urban district, and it's just like 2 kilometers to like 5 kilometers to the rural district. And coming to like Warangal region, it is a heritage city ruled by Kakiyas in 12th century. So we see there like great temples like Thousand Pillar Temple, Ramappa Temple. Again, these monuments are also like each monument, each district got a monument. Oh. Yeah, now Thousand Pillar Temple is in one district. Ramappa is in one district. But after bifurcation, they just got separated. There's Warangal Fort. So we see that culture, and it was also ruled by Nizams. So we also see their culture, and the culture is visible in food, language, and there are like great restaurants. We get great biryani and shawarmas, and and Kakatiyas have also built lakes, and Telangana government has revived the lakes. So we find some good lakes here. So it's a good combination. Like we have like urban development as well as these heritage sites. And fellowship being my first work thing, like I have like got like financially independent and more time because I was like want to take a break from UPSC. And being financially independent and being in an urban center is not a great combination. Yeah. Okay. And it's if you're done, we can pass to the second part about the projects that we are involved in, the work we are doing. First of all, Pooja. Yeah, so as I told you, there is nothing much to do in Gwalior when it comes to the city part. And specifically in skill development, there is nothing to do much because people are like, okay, क्या मैडम क्या skill development क्या बार वही DSC meeting क्या ही Ministry will be so glad to look at this recording, okay? Because this is the exact statement I have heard from ITI people.
कि क्या मैडम, क्या स्किल डेवलपमेंट, एग्जैक्ट दिस स्टेटमेंट। एंड आई एम ऑलवेज लाइक, सर डीएससी मीटिंग करानी है, सर डीएससी मीटिंग करानी है। तो उनका ऐसा रहता है कि मैडम आप तो बस मीटिंग की बात करती रहती हैं और कोई बात ही नहीं करती हैं आप। तो और हमारा एक्चुअली मतलब बी टू बी वेरी फ्रैंक, मतलब हमारा काम बेसिकली वही है ना, हम डिस्ट्रिक्ट स्किल कमेटी मीटिंग कंडक्ट कराने आए हैं कि हाँ चलो कम से कम होने लगे, लेट पीपल शुड नो। तो वहां पे आई फिगर्ड इट आउट कि यार स्किल डेवलपमेंट में तो नहीं कर सकते उतना काम, क्योंकि ना तो यहाँ पे उस तरीके से आउटकम दिखाना पॉसिबल है। हाँ, मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन इज ऑल दैट इज फाइन, बट एक अगर कुछ इनिशिएटिव, कुछ इनोवेटिव दिखाना है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, क्योंकि आप अकेले नहीं कर सकते, आपको लेना पड़ेगा सबको। देयर शुड बी पीपल अराउंड यू एंड हेल्पिंग हैंड्स विद यू। और इवन मेरा सीईओ जो था, मतलब ही वाज एक्चुअली ही गॉट ट्रांसफर्ड, बट द माय सीईओ वाज रियली नाइस, द additional collector development, he was very nice. And when I told him कि सर स्किल डेवलपमेंट ये वो, तो हम दोनों के बीच में मतलब आपस में ऐसे इनडायरेक्ट सामंजस्य बन गया था कि हमको स्किल डेवलपमेंट पे काम नहीं करना है, तो हम करेंगे रूरल डेवलपमेंट पे। तो मतलब ऑब्वियसली अब वो रूरल डेवलपमेंट उनके पूरे अंडर आते हैं, उनके अंदर 13-14 डिपार्टमेंट्स आते हैं, रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ देम। तो यार मेजरली तो आई वर्कड ऑन रूरल डेवलपमेंट ओनली, जिसमें जीपीडीपी पे बहुत काम किया है। एक मॉडल जीपीडीपी बनाई थी, तो मुझे सर ने बोला था कि यार जीपीडीपी पे कुछ ढंग का काम नहीं हो रहा है, लोगों को पता नहीं है चीजें, पंचायत ऑफिशियल्स अपना कुछ भी करते रहते हैं, अपना चलाते रहते हैं। तो यू जस्ट गो टू, just take 4-5 पंचायत एंड ट्राई टू इम्प्लीमेंट सम इस तरह की एक्टिविटीज जो कि ऐसे विजिबल हो, या फिर उनको सिखा दो बस कि प्लान कैसे बनाना है। So I took 4 ग्राम पंचायत एंड देन आई फैसिलिटेटेड ग्राम सभा इन दोज पंचायत, और फिर उन लोगों से बात किया, जो जीआरएस हो गया, पंचायत हो गए, इन लोगों से बात की। I got to know कि people are only and only putting the money in construction work। ग्राम पंचायत डेवलपमेंट को अगर देखा जाए ओवरऑल, तो उनको फर्क नहीं पड़ता कि बाकी इंडिकेटर्स कंप्लीट हो रहे हैं या नहीं, उनको फर्क पड़ता है कि रोड बन रही है कि नहीं, कंस्ट्रक्शन हो रहा है कि नहीं। वाटर एंड तो सैनिटेशन स्कूल ये सब देखा है जीपीडीपी में बहुत। हाँ, और बेसिकली मतलब वही होता है कि यहाँ से वहां तक की नाली बना दो, यहाँ से वहां तक का रोड बना दो, बस इतना ही है। भले ही आसपास भले ही कीचड़ होगा, कचरा होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, रोड दिखनी चाहिए। एंड दैट रोड इज ऑल्सो विच इज लाइक डिटेरियोरेटेड इन लाइक 1 year और समथिंग, वो या खराब हो जाएगी। ऑफ तो कोर्स अगले वो चीज बजट थी। में वहां से पैसा निकलेगा, राइट। हाँ, और वहां पे मतलब वही रहता है ना कि अगर आप इन चीजों में जब आप पैसा लगाते हो, तो आपका मतलब कमीशन बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन मटेरियल की चेकिंग कोई नहीं कर रहा, कोई नहीं देख रहा कि उसका क्वालिटी है कि नहीं है, क्योंकि वाई टॉयलेट्स, वाई रोड्स आर गेटिंग डिटेरियोरेटेड इन जस्ट लाइक फ्यू इयर्स। तो वो चीज थी, तो उनका सरकार से था कि यार देखो जरा व्हाट कैन बी डन। तो देन आई गॉट टू नो कि देयर आर 29 सब्जेक्ट्स इन जीपीडीपी टू बी कवर्ड, इन विच स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, एवरीथिंग इज वेरी मेन फोकस। और वो चीज कभी भी कंसिडर नहीं की। तो इन दोज 4-5 ग्राम पंचायत आई हैव डेवलप्ड दैट, कंसिडरिंग ऑल द इनपुट्स ऑफ द कम्युनिटी पीपल, एंड इट आस्क्ड देम, दे वर लाइक कि हमको तो कभी ग्राम सभा में बुलाया ही नहीं है। एक जमाने में हुई थी कभी बहुत पहले, अपनी हमको नहीं पता ग्राम सभा क्या है, तो देवर लाइक दैट। तो बेसिकली तो यही होता है कि आप इनपुट लो, लोगों के इनपुट लो और उनके टर्म्स पे आप चीजें बनाओ, बट वो चीज नहीं हुई। तो फिर वो सब कंडक्ट करा के बिल्कुल सलीके से, देन आफ्टर सम मंथ्स, 4-5 months, I got to know that the one of the panchayat got the best GPDP award. So everyone was so happy in जिला पंचायत ऑफिस के, अरे मैडम अब आप हमारे स्वच्छ भारत अभियान वाले प्रोजेक्ट में भी आ जाओ मैम, ये भी कर लो मैम, ये भी कर लो। तो दैट वाज फन एक्चुअली, वो जो पूरा प्रोसेस है दैट वाज फन। उसके बाद से कभी कोई ऐसा बहुत हार्डकोर ऐसा प्रोजेक्ट नहीं आया। सीइंग द प्रोग्रेस ऑफ दिस जीपीडीपी, माय सीईओ टोल्ड मी टू गेट इनटू वाटरशेड डेवलपमेंट आल्सो। तो वाटरशेड डेवलपमेंट भी दिस इज स्टिल ऑनगोइंग। तो रूरल डेवलपमेंट में मजा तो बहुत आता है, बस ये है कि आपके पास लोग अच्छे होने चाहिए कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं। तो वहाँ वो चीज है। बाकी स्किल डेवलपमेंट में तो ऐसा है कि आज तक कभी समझ नहीं आया कि करना क्या है उसमें। या तो ट्रेड्स देख लो, आईटीआई देख लो, या फिर बाकी ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, मैंने टारगेट आ गए करवा देंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। तो वो सारी चीजें हैं, बट द पॉइंट इज दैट कि वहां पे काम किया जा सकता है।
बहुत अच्छे से किया जा सकता है, बस ये है कि लोग करप्ट हैं। मतलब करप्ट तो नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है, ऐसा ही है। देयर इज जस्ट मनी कमिंग आउट ऑफ दैट प्रोग्राम कम्प्लीटली। और वो बहुत ऐसे कड़वा सच है, और हमको एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। नोबडी कैन डू एनीथिंग, नोबडी इज गोना पुट देयर हैंड कि यार ठीक है यार, चलो इस सिस्टम को सुधार देते हैं। तो वो चीजें आप अकेले नहीं कर सकते। इवन एनीथिंग इन डिस्ट्रिक्ट, अगर आप अकेले हो, इफ यू आर अलोन, इफ यू आर अ सिंगल हैंडेड पर्सन, तो फिर आप अकेले कुछ भी बदल नहीं सकते। So that I've learned. Rest all is like, yeah, okay, okay, only chilling out. Okay. Swadesh? Okay. So Aparajita has already mentioned like the Odisha, like the SHG system is SHG model of Odisha is very much prominent, and also the skill development ecosystem is also one of the best synchronized systematic institute in Odisha. Like Right. everything is in a proper way. So for my district, the first project I got involved in, like there are many large scale industries are there. So the basic part is to like provide more and more employment to the local residents. So for that, what like I have a good rapport with the HRs of the like local industries. So I discussed about like what are the problems, why they are not taking the local residents as the desired candidates, why they are recruiting from the nearest state, like from Bihar, Jharkhand, and all. So after that, I got to one point. The like local residents are not like much skilled. First one, they don't have like relevant experience. They have theoretical knowledge, but they don't have like the real world, the practical knowledge about the machines, how it operates, and all. So for that, like previously, we also conducted like apprenticeship. Before Pradhan Mantri National Apprenticeship, we also conducted the formal apprenticeship, but there was no target for us. So my ex DM, like now he has already transferred. He has promoted to another department. So I had a good relationship with him. So basically, I met him uh, like quarterly basis, you can say, and he also took some suggestions like what can be done, and what are the new skills that can be implemented. So I told him like if you can like implement one strict guidelines to the industries to recruit like some of the like you have to recruit this much of local residents to your industry. So he issued one letter, and that thing I properly monitored that thing. After that, Pradhan Mantri National Apprenticeship Mela came. Also, we have conducted 5 p.m. and a.m. till now. And currently, I think the total statistics is like 367 or something people got like the apprenticeship chances. And 18 of them got retained as a permanent employee in that particular like domestic industry. So that was a great achievement for me. The second one, like I and some of the fellows of my nearest district, like Sundargarh, you know about Sel Raulkela. So that is the Sundargarh district, and Sambalpur. Also, Sambalpur is there. So we, the fellows of this district, we collaborated. We shared one groundwork about the indigenous non-timber forest product that is called mohua. You can Yeah. search it in the net. Madhuka longifolia. It's a like good nutrient food, and it is indigenous in the forest cover areas. So it is prominent in Chhattisgarh, Jharkhand, and all those states, and Odisha too. So we started the value chain analysis, and we interacted with the SSGs, like what are the value-added products that can be made out of it, so that the lifestyle of the marginal group or the forest dwellers that can be improved properly. So we started work. We met with the producer groups and SSGs, and then we started collaborating with the institutions like the biotech department of the Sambalpur University, who are already working on that product, like the value addition of product. We got to know that there are 16 products that can be developed from that mahua plant. So it is like a zero waste plant. So you can use the flower, you can use the seed, you can use the fruit, you can use the seed for extracting oil, you can use the PDR
that extracted part after after extracting oil from the seed. That is called PDA. So that PDA can be used in the fishery farming. So we got to know that there is a good potential for that product. So we collaborated with the Sambalpur University, and we get to know that the SSGs don't get proper exposure, like how to prepare these things out of Mahua. So we started implementing the pilot project in Sambalpur district recently, July 1st. 1st July to 4th July, we started one capacity building program at Sambalpur district. Now I have discussed with the divisional forest officer of Jharsuguda also. We are also implementing that proper planning in my district. So, and after that, we will go to Sundargarh, and after completing all the training program, we are planning to do the market linkage. So on the pilot basis, the Sambalpur University prepared some of the gulab jamun, chocolate and cake, and we kept it as a showcase in the Gokul. It is a hotel chain, Horeca sector. So Gokul in Sambalpur, and it was quietly accepted by the local people. So we saw the potential, and we are going to implement it soon before I complete this fellowship. That is the second project. And one third project I have been involved in is Mahanadi Coal Limited. You know about that company. It is one of the largest mining company operating in India. So MCL, there is a huge mining area in Sambalpur and Jharsuguda district. So basically, what they are doing, there is a new plant is being constructed in Jharsuguda. So it is so MCL gave the tender to Global Coal and Mining Company. So there will be a huge recruitment. We came to know that news. So what we do that again, we go to I and my employment officer. She is very cooperative. What I say, she's like, yes, we can do it. So we both went met collector and told sir, there is a plant going to build in Jharsuguda district. So if you can issue a letter, they can recruit only the local, the graduates, like engineers, diploma candidates, ITI candidates, then that will be beneficial. That will be beneficial for the people of Jharsuguda. So again, he agreed to our proposal. Again, a letter was issued. We circulated it to the Global Coal and Mining, and they agreed to recruit only the local residents of 200 posts on payroll basis. It's not permanent. Not temporary. It's permanent job role. So the exam has already conducted. The results are already out. So the final issuation of offer letter is pending, and that will be completed within within August. Okay. Before yeah. So that is the third project, and the fourth project, my new collector, my new collector, she joined 2 months back. So she gave us a target to achieve the girls enrollment in the ITI and Polytechnic school up to 50%. So basically, before the academic year 2021-22, it was 30% of the female enrollment is mandatory for the ITA and diploma colleges. So she told no, whatever you do, you just make it 50% for the academic year 22-23. So we started the rigorous career counseling, like BLCC, block level career counseling. This project is not only for the Jharsuguda district; it's totally for the Odisha. So every fellow of Odisha, they are doing this. They are involved in this particular project. So we do 3 phases of block level career counseling. Actually, the thing is the western belt of Odisha, there are majority people are from scheduled caste and scheduled tribe category. So they don't know about what are the facilities available. Even if you can analyze the facilities available at ITI and Polytechnic, there is zero fee for the female candidates. So that's scheme is there.
Nano Unicorn is there. I think many schemes are there. Like I can't recall all the schemes, but yeah. So for the female candidates, it will take I think 100 rupees is the admission fee. That's all for 3-year diploma and 2-year IT. So these schemes they don't ever up. So we started the career counseling. We did the parents teacher meeting. We collaborated with the principal of the schools, and we see the result in the first level counseling has been admission has been done in the IT and polytechnic, and the female enrollment ratio is 42% on an average in ITA and polytechnic. Before it was 33 for ITI, and I think it is 18% for the polytechnic school. So now it got 42% for the ITI and 39% for the diploma school. So we have achieved, yeah. That is the fourth project, and the fifth project is like we are currently mobilizing some of the candidates to get them admission into the CPET Baleswar. So there will be a skill development training for the 6 months. That this project is under DML, and the money has already been sanctioned. That is 1.8 crore. They have already sanctioned. The admission fee will be total borne by the district administration, and mobilization process is already started. We are targeting 200 candidates for 2 phases. For one phase, 100 and 100. So they will mobilize to the CPET Baleswar. They will take training, and they will provided with 100% placement for that. So these are all the 5 projects I've been involved in, and some of the projects I got success, and some are still going on. Okay, Yeah, cool. that's all. The Payal? ओके सो दिल्ली में स्टार्टिंग के 1 ईयर मैंने एनयूएलएम के साथ काम किया है काफी एनयूएलएम बिकॉज उस टाइम पे मेरी जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थी वो मिशन डायरेक्टर भी थी स्टेट अर्बन लाइवलीहुड मिशन दिल्ली की। तो जो पूरे दिल्ली के लिए 11 डिस्ट्रिक्ट्स का जो हेड ऑफिस था एसएलएम का एनयूएलएम दिल्ली जैसे भी कह लो, तो उसमें काफी काम किया। एंड आई थिंक वो 1 ईयर वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव ईयर और द मोस्ट प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ माय फेलोशिप, क्योंकि आप अब पावर स्ट्रक्चर भी है, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर भी है। दिल्ली में 10 साल पहले 10,000 एसएचजीज हुआ करते थे, बट पॉलिटिक्स, चेंज ऑफ गवर्नमेंट्स एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। जब मैं नवंबर 2021 में एसएलएम के ऑफिस गई थी, तब उस टाइम पे हार्डली देयर वर 200-250 एसएचजीज एंड द एसएलएम टीम, हाँ, स्टीप डिक्लाइन बिकॉज एसएचजीज क्या है, अल्टीमेटली विमेन ग्रुप्स हैं, अर्बन पुअर ग्रुप्स हैं। आप उनके साथ इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे, आप उनको अपने साथ लेकर नहीं चलोगे, आप उनको छोड़ दोगे, प्लस देयर इज नो फंडिंग दैट इज गोइंग टू कम टू देम, तो फिर वो तो सारे मतलब टूट ही जाएंगे एसएचजीज। तो हाँ, अराउंड नवंबर 2021 में कुछ 250 एसएचजीज थे। तो उस टाइम पे जो मिशन डायरेक्टर मैम थे, उन्होंने कहा कि माय टीम विल फोकस ऑन मेकिंग एसएचजीज एंड यू हैव टू फोकस ऑन क्रिएटिंग लाइवलीहुड्स फॉर देम। तो वो काफी अच्छा टाइम था, काफी सारे ऑर्गेनाइजेशंस के साथ ऑलमोस्ट या तो एमओयू हो गए या फिर एक इनफॉर्मल तरीके से पायलट प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए गए, बहुत सारी स्किल ट्रेनिंग हुई। आई थिंक हाँ, वो बेस्ट पार्ट ऑफ द फेलोशिप जर्नी था, बिकॉज एक आप जब ऑन द ग्राउंड काम करते हो, आपको एक डायरेक्ट इम्पैक्ट होता हुआ दिखता है। मतलब मैंने एक सिंपल सी एफएसएसएआई वाली वो वर्कशॉप कराई थी, जिसमें सर्टिफिकेशन कैसे करते हैं, लाइसेंसिंग कैसे होती है, ये सब बहुत ही माइन्यूट सी चीजें बताई गई थी सारी वुमेन को। एंड देयर वाज दिस वन एसएचजी जिसने मुझे अपना पहला एक सिंपल सा प्लास्टिक का पैकेट था, उसमें कैसे वो अचार, बड़ी, पापड़ ये सब बना के बेचते थे। एंड द नेक्स्ट टाइम व्हेन आई मेट हर, शी शोड मी कि देखो ये मैंने पैकेजिंग बनाई है और ये बहुत ही सस्ते में बन गई है। एंड एक ये छोटे छोटे मोमेंट्स होते हैं जो आपको एक बहुत ही सेटिस्फैक्शन वाली फीलिंग देते हैं, एंड आई गेस हाँ, वही मोटिवेट करते हैं आपको आगे कुछ करने में। सो हाँ, एनईएलएम के साथ मेरा काफी अच्छा काम रहा। एंड उसके बाद ड्यू टू सम रीजंस आई गॉट ट्रांसफर्ड बैक टू माय डिस्ट्रिक्ट। तो जब मैं एनईएलएम के साथ में थी, तब मैं पूरे 11 डिस्ट्रिक्ट्स का काम देखती थी, सभी एसएचजीज सभी डिस्ट्रिक्ट के एसएचजीज की जितनी भी कैपेसिटी बिल्डिंग वर्कशॉप्स आप करा लो, तो उसके लिए देखती थी। व्हेन आई गॉट ट्रांसफर्ड बैक टू माय डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद शुरुआत थी, तो
नए डिस्ट्रिक्ट में ऑफिशियल्स भी आए थे, तो मैंने 4 महीने बहुत ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट का काम किया है, बहुत ज्यादा इवेंट मैनेजमेंट का काम किया है। एंड आई थिंक बाकी सब प्रीवियस वर्जन्स ऑफ द आप पॉडकास्ट सुनोगे तो अ लॉट ऑफ फेलोज हैव सेड द सेम थिंग कि हाँ, फेलोशिप में स्किल डेवलपमेंट के अलावा भी हम बहुत सारे काम करते हैं। मतलब आप इवेंट मैनेजमेंट तो जैसे इसी काम के लिए बुलाया गया है ऐसे हो गया था। फिर उसके बाद हमें एसएसडीएम ऑफिस जो है दिल्ली में, तो वहां भेजा गया। एंड हमें लगा वहां जाके फाइनली कुछ स्किलिंग का काम हो सकेगा। बट संकल्प स्कीम के अंडर दिल्ली को फंड ही नहीं मिला है अभी तक। एंड दिस इज समथिंग दैट इज अ प्रॉब्लम जो कि खड़ी हुई है बिकॉज ऑफ बोथ द स्टेट गवर्नमेंट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो अब वो ये आज तक पैसा आया नहीं है। अब आप कितने जगह जा जाके यू गो टू डिफरेंट कंपनीज, यू आस्क फॉर दिस सीएसआर फंड्स, बट आप कितना ही कर पाओगे। Right. एंड देन दिल्ली में लाइक शी वाज आल्सो टेलिंग कि स्किल डेवलपमेंट क्या होता है मैडम, आप तो स्किल डेवलपमेंट के पीछे लगे रहते हो। सो देयर इज जस्ट वन पर्सन इन द डिस्ट्रिक्ट हु इज एक्चुअली वर्किंग फॉर स्किल डेवलपमेंट, देयर इज नो पीएमयू। ऐसे कहना तो नहीं चाहिए, बट इवन एसएसडीएम ऑफिस में दिल्ली में क्या है ना, देयर इज अ लॉट ऑफ, मे बी सब जगह ही होगा, बट देन बिकॉज ऑफ द पावर इक्वेशन एंड पॉलिटिक्स ऑल्सो एक टेंडेंसी है टू मेंटेन स्टेटस को, Yeah. कि ना हम इसका काम करेंगे ना हम उसका काम करेंगे, मतलब बहुत मेहनत नहीं करेंगे, जो हमारा काम हो जाता है थोड़ा बहुत कर करके बस वही करेंगे। तो हाँ, एक ये काफी बड़ा फैक्टर रहा है जिससे कुछ ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हो पाई है। बट आई ऑल्सो बिलीव कि अगर आपको काम करना है तो आप कर ही लेते हो, और आपको नहीं करना है तो आप चिल भी मार के बैठ सकते हो फेलोशिप में। सो आई गेस अराउंड 14-15 मंथ्स बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, बहुत मेहनत कर ली। बिकॉज मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स इनिशिएट किए। अभी कुछ दिनों पहले वो एक गूगल फॉर्म आया था ना कि कितने आपने प्रपोजल्स Yeah. दिए Right. और फिर कितने कंप्लीट हुए, वो वाली चीजें भरनी थी। आई रियलाइज्ड कि अराउंड 40-45 प्रपोजल्स गए थे। बहुत इनिशिएटिव्स इधर उधर हाथ पांव मार के अलग अलग लोगों से मिलके इतने किए गए थे, बट जो एक्चुअल रिजल्ट बहुत ही कम, मतलब मे बी अराउंड 25% ऑफ देम वर रिजेक्टेड, उसमें से 25% ऑन होल्ड, 25% गॉट कंप्लीटेड, कुछ ऐसा था सीन था। एंड वो भी कंप्लीटेड इसलिए मैं कह रही हूँ क्योंकि उस टाइम पे मैं एनयूएलएम के साथ काम कर रही थी, तो दे हैड फंड्स। Right. बाकी अगर मैं डिस्ट्रिक्ट में आके कुछ भी करूँ, देयर इज नो फंड, नो वर्क। तो अब वही चीज है। बट अगर मैं पॉजिटिव्स की बात करूँ तो दिल्ली में बहुत एक्सेस है। मतलब I have personally worked with members of parliament. Currently also I'm working on a project with Minister of State, Ministry of Skill Development. तो वो एक्सेस जो है ना, मतलब मे बी कॉन्टैक्ट्स किसी और के हों, अपने ही फेलोज में से किसी के कॉन्टैक्ट्स होंगे, बट बिकॉज ऑफ देम एंड हम दिल्ली में स्टेशनड हैं, तो वो एक्सेस जो मिला है विद मिनिस्ट्री, विद सेक्टर स्किल काउंसिल्स, एंड सामने बैठ के मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं। Right. तो दिल्ली में वो एक्सेस तो है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट हम 11 फेलोज हैं, छोटी सी दिल्ली है, हम तो मिल लेते हैं, और मिल लेते हैं तो मस्ती भी हो जाती है। तो इफ फेलोशिप इज नॉट गिविंग अस द डिजायर्ड पॉजिटिव रिजल्ट्स कह लो, या फिर वो वर्क सेटिस्फैक्शन नहीं आ रहा हो, या कुछ करने के लिए नहीं हो क्योंकि पैसा ही नहीं है, तो फेलोज तो मिल ही लेते हैं। एंड पार्टी वार्टी तो होती रहती हैं, दिल्ली के फेलोज हैं, नाम तो खराब नहीं होने देंगे अपना। तो हाँ, आई गेस यही है। कुछ एक दो मुझे रिग्रेट्स रहे हैं कि जैसे डिस्ट्रिक्ट ने कभी एक बार कुछ एसएचजी से काम कराया था, एंड दे प्रॉमिस्ड टू गेट गिव देम द कॉम्पेंसेशन फॉर देयर वर्क एंड सर्विसेज एंड प्रोडक्ट्स जो उन्होंने बनाए थे। बट समहाउ जैसे गवर्नमेंट है, रेड टेप, फाइल चलती रहती हैं, वो पैसा उन एसएचजीज को मिला नहीं वापस। एंड अल्टीमेटली आप कितना ही फाइट मारोगे, मतलब सिस्टम से कितना ही फाइट मारोगे। एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट द वन हु कन्विंस देम कि नहीं आप काम करो, आपको बाद में पैसा मिल जाएगा, तो मेरा एटलीस्ट गिल्ट थोड़ा कम है। बट अब वो गिल्ट तो है ही, इतनी मेहनत करके लोग करते हैं, एंड 1-1 लाख रुपए का अगर आप अर्बन पुअर सेक्शन को उनके ही सर्विसेज का पैसा नहीं दोगे, फॉरगेट अबाउट इंटरेस्ट एंड एवरीथिंग, तो वो नहीं दोगे तो कैसे होगा, मतलब फिर आप क्या काम कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है। तो हाँ, एक वो रिग्रेट है कि देयर वाज सम वर्क which the SCGs had done for the district, but then they were not compensated entirely, and only partial amount was paid. That also after I
ran after everyone in the district, everyone in the company जिसने CSR में, मतलब वो literally beg करने वाली situation तक मैं भागी हूँ. 40 दिन लगे हैं, but नहीं हुआ है पूरा पैसा. District is also not very much focused कि ठीक है देख लेंगे. Probably आप तो not the मैडम, आप तो 2 priority. साल हो, Yeah, right. आप तो Probably 2 साल हो. इसीलिए ना मतलब इसीलिए कहते हैं कि कभी भी मतलब नेवर कमिट फॉर मनी. इसके पहले कि मतलब एश्योर Exactly. ना हो जाओ ना बिल्कुल भी कि हाँ मतलब होने वाला है, पैसा पेमेंट होने वाला है, तब उसके पहले तक नहीं करना चाहिए. मतलब आई हैव हर्ड इट फ्रॉम मेनी बिल्कुल पीपल कि बिल्कुल. पैसों के मामले में एंड मत पड़ना चाहिए. हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि whatever SHGs are doing, उनको मार्केट प्राइस पे नॉर्मली compete करने दो. डू नॉट आस्क देम टू सेल देयर प्रोडक्ट्स और सर्विसेज टू यू एज अ गवर्नमेंट एजेंसी एट अ लोअर प्राइस, बिकॉज आप एक गवर्नमेंट एजेंसी हो. मतलब इट इज अनएथिकल ऑन सो मेनी लेवल्स. बट अब अनएथिकल कहें तो क्या कहें, आई स्टिल डू नॉट हैव अ प्लेस टू सिट इन माई ऑफिस. तो अब कितना ही बोले, किसे क्या ही बोले, बट यही है कि अब लाइक यू सेड 50 वर्किंग डेज आर लेफ्ट. एक हैप्पीनेस वाली भी फीलिंग आई कि ओके ओनली 50 वर्किंग डेज, ठीक है, आई कैन मैनेज बाय नॉट फाइंडिंग अ प्लेस टू सिट एनीवेयर या जो भी. बट फिर यही लगा कि ओके 4 ही महीने बचे हैं, तो या बिटर स्वीट मेमोरीज रहेंगी. बट आई गेस it's been a good ride in the fellowship, and it has been a really good transitioning experience for me as well in terms of my personality, because यूपीएससी ने ऐसे काफी, क्या कहते हैं, कॉन्फिडेंस लोअर कर लिया था कह लो, या फिर एक इंट्रोवर्ट बना दिया था. एंड मोनोटोनस हो गई थी लाइफ. I know. हाँ, and fellowship has given me so many good friends in the Delhi cohort, and even the other 3 cohorts that we have for our IIM, and they have helped me get back to my pre-UPSC version. So that's a good thing, I guess. That's it. Aparajita? काम की बात अगर बोले तो मैं थोड़ा बैकग्राउंड देती हूँ, मेरा डिस्ट्रिक्ट की जर्नी कैसी रही पहले. तो आई थिंक जो हम लोगों का कम्युनिकेशन हुआ था ऑफिसेस से डिस्ट्रिक्ट्स पे, मुझे नहीं पता वो हर जगह ऐसा था कि यूपी कोहॉर्ट में ही था. पीपल डिड नॉट नो कि वी आर कमिंग इन द डिस्ट्रिक्ट. सो मेरी सीडीओ से बात हुई थी, और यूपी में ऐसे है कि आई एम ऑडिबल राइट. Yeah, you're audible. Yeah. तो यूपी में ऐसा सिस्टम है कि हमें बोला गया था तुम जाओ सीडीओ के साथ बैठोगे, सीडीओ तुम्हारा मेंटर है. तो माइंडसेट वो था, बिकॉज लाइवलीहुड में ऐसे ही काम किया था, आईएएस के साथ डायरेक्टली काम किया था, तो वही पूरा अप्रोच लेके फुल कॉन्फिडेंस और फुल मोटिवेशन के साथ आई वेंट टू द डिस्ट्रिक्ट. और हमारा एएम भी ऑनलाइन हुआ था, तो उसमें तो बकवास ही लग रहा था कि क्या ही हो रहा है, क्या ही बता रहे हैं ये लोग. तो ठीक है, डिस्ट्रिक्ट गए और टास्क वास्क मिल गए थे. तो हुआ यूं कि पहले तो सीडीओ को पता, सीडीओ ने मार्क करके दे दिया डीसी को, यहाँ पे जो डीपीएमयू के डीसी थे, डीपीयू ने मार्क कर दिया एमआईएस को. सो नाउ एमआईएस इज अ पर्सन, कॉन्ट्रेक्चुअल बेस्ड पर्सन who is paid less than us, but in a way we have to report him or we have to seek help for him, और साथ ही साथ में हमें उनकी मॉनिटरिंग भी करनी है. So getting how things are in the district या फिर किस तरीके से, तो उस चीज की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई. प्लस सिटिंग नहीं मिली थी मुझे बहुत टाइम तक. मुझसे बोला, जो मेरा ऑफिस था जहाँ पे, वहाँ पे बहुत छोटा सा रूम था, तो मुझसे बोला गया आप जी आईटीआई में बैठ लो. वहां पे भी उन्होंने बैठने के लिए जगह नहीं दी. तो मेरे को बैठने के लिए अभी रिसेंटली लास्ट दिसंबर में जगह मिली. देन एएम हो गया, तो एएम में हम लोग फिर चले गए, फिर वापस आए, तो मेरे को पता चला वो जगह अभी चली गई है. सो आई नाउ सिट विद माई एमआईएस, और बहुत छोटा, बहुत कंजस्टेड, जस्ट थिंक की, और ऑपरेटर नहीं है, इसलिए अभी मैं बैठ जाती हूँ, वरना मेरे पास जगह नहीं बैठने के लिए. तो ये सब कहानी है. और स्किल डेवलपमेंट में कोई इंटरेस्टेड है नहीं, क्योंकि स्किल डेवलपमेंट में पैसा नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक. तो ठीक है, मेरे को बड़े अच्छे बड़े बड़े ऑफिसर्स ने बोला है, देखो आओगी तो ठीक है, नहीं आओगी तो ठीक है. बट लोग
मतलब लोग तुम क्या कर रही हो, बीइंग अ फीमेल लोगों को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रहता है कि कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, ऑफिस नहीं आ रही है, ऑफिस में दिख नहीं रही है, अटेंडेंस में साइन नहीं कर रही है, और ये सब चीजें हैं। तो ठीक है, ये बढ़िया चल रहा है। फिर डीएससी हो जाती है जिसमें कोई आता नहीं है। आई हैव ट्राइड। आगरा का सिस्टम ये ना, आगरा एक बहुत डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है यूपी का, और वहां पे बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंशियल लोग हैं आगरा में, आपको बहुत मिले, बिजनेसमैन हैं, और जो ऑफिसर्स आते हैं आगरा में वो एक माइंडसेट के साथ आते हैं, बिकॉज आगरा में पैसा बहुत है। ठीक है, तो मतलब मैंने जो प्रोजेक्ट्स बताए या कहे या प्रपोजल्स दिए तो लोगों को इंटरेस्ट नहीं था, उनका यही था सीधा, पैसा कहाँ से आएगा। आप तो स्किल डेवलपमेंट की है ना, आपको और प्रोजेक्ट्स में इंटरप्ट करने की क्या जरूरत है। सो ये सब सीन है, मतलब कोई पसंद नहीं करता मुझे डिस्ट्रिक्ट में, इन शॉर्ट। I had very similar things. Okay, when I had sort of initiated a project on circular economy, and then even the officer used to ask me like, तुम कहाँ से हो सर, स्किल डेवलपमेंट से, तो वहां जाके काम करो, यहाँ मत आओ। वहां जाके काम करो। एंड थोड़ा मुझे लगता है शायद मैंने थोड़ा ये इशू अपने लिए खुद क्रिएट कर लिया। जब स्टार्टिंग में टास्क आए थे ना हर डिपार्टमेंट के, yeah, right. I'm like very seriously. I went to each department. I asked for the data. I reported to my mentor, IAS officer. Uh, तो मतलब everybody is like कि ये तो जाके सीधे सर से बात कर लेती हैं, फिर सर डंडा करते हैं। तो मेरे को पहला जो प्रोजेक्ट मिला था वो सीडीओ सर ने, चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर जो है, उन्होंने दिया था एसएचजी के मार्केट लिंकेज और इंक्यूबेशन सेंटर का प्रोजेक्ट बनाने के लिए। सो फॉर दैट ही आस्क्ड मी टू विजिट ऑल द एसएचजीज, लाइक मेजर जो एसएचजीज हैं उनको विजिट करो, देखो क्या पोटेंशियल है, देन वील मेक अ इंक्यूबेशन काइंड ऑफ थिंग। सो मेरे को लिस्ट मिली एनआरएलएम से, सब कुछ हुआ, देखा, कॉल किया, कुछ कॉल पे इतना कुछ पता नहीं चला। सो आई स्टार्टेड विजिटिंग। So what I got to know that everything is on the paper, and the people who are producing the marble thing और जो भी है shoes जो भी produce कर रहे हैं district में, they were producing like since ages now, और उन्हीं लोगों को मिला के इन्होंने एसएचजी ग्रुप बना दिया। Okay. Basically, they won't produce for the SHG market. They'll produce for the middlemen and the businessmen. So ये वाला चक्कर हो गया। तो I went and I reported to CDO सर, like पूरा नहीं रिपोर्ट किया, फिर भी बताया तो कि ऐसे नहीं हो पाएगा, मतलब वो रेडी नहीं होंगे मार्केटिंग करने के लिए। सो इससे ये हुआ कि जो NRLM DC थे, he got pissed off, and we had a like fight kind of thing. So फिर I decided that I won't go in the SHG thing. I had experience SHG का पूरा, तो मेरे को इंटरेस्ट था बहुत ज्यादा उस पर काम करने के लिए, but then I did not go. उसके बाद फिर वो चीज वहीं पर खत्म हो गई, इंक्यूबेशन। देन आई डिसाइडेड कि अब मैं स्किल डेवलपमेंट में फोकस करूंगी, डीएससी करवानी है और स्किल डेवलपमेंट का काम करना है, जो टास्क आएंगे उन पे काम करेंगे। व्योमिका स्पेस लैब्स के बारे में आप लोगों को पता होगा, काफी ज्यादा फेमस हो गए अब तो उनको बुलाया था। तो मेरे सीटीओ सर ने पहले तो हाँ बोल दिया, उसके बाद बोला कि यार बहुत महंगा लग रहा है तो नहीं हो पाएगा, तो देखते हैं। लेकिन और फिरोजाबाद में हो गया, मेरे नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट में, उन लोगों ने शायद डिसाइड भी कर लिया, मैंने बताया था उनको, तो फिर ये चीज हो नहीं पाई, सक्सेसफुल नहीं हो पाई। So what I do in the district is I work with like DIC department and skill development के department, जो उनके काम होते हैं, जैसे ODOP registration वगैरह करवाना है या फिर ODOP मेला हो रहा है, तो I take interest in those things. I participate, I work for them. रोजगार मेला वगैरह में कर लेती हूँ काम, क्योंकि ये लोग इंक्लूड नहीं करते, इनको लगता है कि हम जाके फिर सर को बताएंगे, फिर इन लोगों का जो पैसे वैसे का चक्कर हो रहा है, इंटरप्शन होगा इन सब चीजों का, तो इंक्लूड इतना ज्यादा नहीं करते इन लोग। तो आई हैव आल्सो स्टॉप। मेजर वर्क एट द डिस्ट्रिक्ट इज, हम लोगों ने अभी एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर के साथ, ऑफिस के साथ मिलके दिव्यांग रोजगार मेला करवाया था एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, तो वो हमारा बहुत सक्सेसफुल हुआ। अभी तक दिव्यांग रोजगार मेला हुआ नहीं है कहीं पे मेरी नॉलेज में,
तो वो एक अच्छी बात रही डिस्ट्रिक्ट में. प्लस आई हैव स्टार्टेड गिविंग काउंसलिंग्स इन स्कूल्स एंड Yeah, I've done in ITIs. नहीं, नॉट आईटीआई. आईटीआई के लोग पसंद नहीं करते मुझे, तो एक दो बार गई हूँ मैं. तो जो डिपार्टमेंट से काम है ना वो लोग पसंद नहीं करते, तो बड़ा मतलब ट्रेजिक सा सिचुएशन हो रखा है यहाँ पे. तो स्कूल्स वगैरह एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर यंग से हैं दोनों, तो उनको समझ में आता है मेरा काम, तो उनके साथ जाके अभी 30+ काउंसलिंग्स करी हैं. तो उसमें मजा आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि कुछ फ्रूटफुल हो रहा है अपार्ट फ्रॉम डेली डायरी और टाइमलाइन और ये सब बकवास चीजें करने के अलावा. तो और हाँ, यही है, मतलब और कुछ ज्यादा है नहीं. Okay. प्लस और एक चीज, मतलब स्किल डेवलपमेंट की भी जो चीज है ना, इन लोगों ने अच्छा बनाया है एमजीएनएफ को. बट मेरे को लगता है इनका जो इंटेंट था ना, ये पैसा खर्च करना था संकल्प का, तो कुछ ऑन ग्राउंड मतलब मेरे को लगी नहीं है. जैसे संकल्प का पैसा आ रहा है, so for example I asked for the workshop of these officers, क्योंकि पता नहीं है किसी को स्किल डेवलपमेंट के बारे में, या फिर जो इंटर डिपार्टमेंटल चीजें हो रही हैं उसमें भी लोग हाँ ठीक है चलो हो गया, आ गया यूपीएसडीएम से आ गया करवा लिया, एनयूएलएम में आ गया करवा लिया. बट इनका लिंकेजेस, इनको कैसे लोग यूज कर सकते हैं, तो उनका भी फायदा हो सकता है इस चीज में, तो वो चीज नहीं पता है. तो वर्कशॉप के लिए 2 लाख रुपए थे हम लोगों के पास संकल्प के, बट फिर उसमें शायद किसी और का फायदा नहीं हो रहा था, किसी ऑफिसर का, तो वो अप्रूव हो गया था, सब हो गया था, बट एंड मौके पे कैंसिल हो गया. Okay. तो यही सब चीजें चैलेंजेस है, यूपी के अपने चैलेंजेस हैं. Finally, Satyaveda. Yeah. So as I told, like the districts is like newly formed, all the districts. So the first few months I have spent, knowing like which place is under which district. Yeah. For the first 1 month, I was like, there is this Ramappa temple, which is a UNESCO heritage site. So I was thinking that that's in my district. So after 1 month, when I was preparing district profile, I got to know that, acha, okay, this is not in my district, this is in my neighboring district. But it's just like a few kilometers away. Then I thought, acha, okay, there is like 1,000 pillar temple. Maybe I can write it under my district. And I was like, no, that comes under urban center. It's just, just like with 5 kilometers, it went to the other district. I was like, chalo, yeah. So yeah, and even the district offices, they are like scattered all over the place in the urban districts. It's not even in the district that I'm allotted to. So the first month when we are given the assignment to meet the DSC members, so I had to the phone numbers or where the addresses are. So I had to ask like people and just roam around. And then after I reach the district, they'll be unavailable. So it led to a point where one afternoon, I still remember that day, I guess in first month, November or December. One afternoon, I was standing on the road, like after going to like 3, 4 offices, none of them were available. I was like what the heck I'm doing? You could have directly written in the report, na? Say no officials are present in my district. Whatever are, they are in other district only. Yeah, the fellows like they make fun of me that you do not even stay in your district. So yeah, but that day I was like, that's very frustrating. I didn't have a vehicle back then, so it was more difficult. But then at around 4 o'clock, I thought, okay, let's give like one more chance, and I went to this tribal department. And then after waiting for half an hour, something at 4:30, I met him, district tribal development officer, and we had a like great conversation, like 1 hour. We talked about how we could, develop these tribal schools and all. And he's so passionate. I was like, yeah, like it's worth it. Like we have low times and all, but like one good conversation. Recently, I've interacted with a PM Rural Development Fellow. Like he has done his fellowship a few years ago, and he was telling, like whenever you feel like quitting a fellowship, because it gets frustrating sometimes, you just wait till the end of the day. I thought, yeah, that's a great advice. So, yeah, but yeah, in the course of fellowship, I have learned the things
which I hardly bothered before the fellowship. Like, for example, child sexual abuse has been one thing. Right. I've started studying about that because there have been cases in the district as well as in Hyderabad, in everywhere, basically. So yeah, I started like studying about that, and then l- um, So I made have a project followed proposal. some of Yeah, your LinkedIn posts, and you have posted a lot about work in V Hub or Women Empowerment Hub of yeah, Telangana governments. yeah, right. Yeah, so we go to these institutions, T Hub, the Technology Hub, B Hub, She Hub, the right. Telangana government. Yeah, that's it's because Telangana government has been supporting, like, and we also find it as an excuse to go to Hyderabad, that so that all of us can meet. We can escape the districts. Right. So yeah, I have put a proposal to Education Department and Child Protection Committee, to establish a mechanism in schools to address the child sexual abuse incidents in a better way. That's one thing, and there is also like uh, transgender population, a substantial like transgender population in the district. So I used to like see them every day, like when I'm traveling to the office, and then I thought something could be done. So I started talking to them and talking to their the activists, transgender activists, and yeah, put a proposal. And the one you're mentioning, we have, yeah, so we have put a proposal that we could provide them the counseling sessions, medical assistance, and certifications and livelihood thing. Uh, so so yeah, pretty much. And in the last few months, I've been like back to preparation because we have like state public service. After a really long time, Telangana government has gave the notification. So and trying to get back to preparation too. Okay. And women's rights has also been one thing that I developed interest in. And IIM cohort, like Udaipur cohort, like we have like some amazing female fellows. We have created a safe space where we could like open up, especially because of course like district immersion has been tough for every one of us, and it's been more struggling to female fellows too, both on a personal level and in workspace also. We have heard such instances. So, and that led me to applying for She Creates Change program of change.org Mhm. foundation. So yeah, I have attended that workshop and met some inspiring women. So yeah, so and we have this Telangana MGNF social media pages, and I along with one more fellow, we manage that. Yeah, that is the only thing that's going on consistently. I cannot say I've been running Panchayat, in my MGNF experience. So No, you have to take credit for that. sure. Okay, cool. So in the final open session, it's like if you have any embarrassing memories, any fun moments, anything you would like to share, anyone can go. It's open now. And not embarrassing, but so we work Telangana fellows. We are placed in district employment office. Uh-huh. So the office was given work called, they have to call all the people who took employment cards Right. and take their feedback. So every district got like 1,000, 1,500 list, and they were given some deadline, some 1 week time. So they have to call some 1,000 people and ask their feedback, how it's been. So because there is like very short deadline, they sought fellows help, and we were like, I mean, if not all, some of the fellows are like, we sat there 2, 3 days, and every day we did like hundreds of calls. We're just calling like, how about the services? Like, do you have any issue with the employment card? So that was like, I mean, what the hell we are doing? Muted. Yeah. Yeah. Pooja, Aparajita, anyone? या तो अभी सब लोग बोल रहे थे ना कि यार मतलब जैसे अपराजिता ने कहा कि यार कोई पसंद नहीं करता मुझे, इस डिपार्टमेंट में नहीं पसंद करता, उसमें नहीं पसंद करता। तो फर्स्टली मेरा सबसे पहले जो मुझे अलॉटमेंट हुआ था मेंटर का और डीओस का, वो आईटीआई में था। तो वहां पे ना मतलब उन्होंने कुछ काम बोला ऐसे कुछ करने के लिए कि यार ये वाला पीपीटी बनाना है, विच वाज नॉट क्लियरली नॉट माय एरिया ऑफ वर्क।
तो मेरा ऐसा था कि सर मतलब ये तो मेरा काम नहीं है, तो ये क्या है? ऐसे कुछ मैंने इनडायरेक्टली उनको बोला, मतलब कुल मिला के ये था कि मना कर दिया कि नहीं करना है ये काम। तो पता नहीं उनको क्या चटक गई उनकी कि अरे नहीं ये तो बिल्कुल ही ऐसा हो गया है, तो मैं अब अटेंडेंस नहीं लगाऊंगा और ये नहीं करूंगा। उस टाइम पे पता भी नहीं था ना यार कि और किससे करवा सकते हैं चीजें। तो वो थोड़ा सा ट्रैक ट्रैक करने लग गए और उन्होंने यार एसआरए को फोन कर दिया कि हाँ इनका क्या वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं और क्या चीजें हैं, कैसे क्या करती हैं, ये तो आती ही नहीं है, टाइम पे नहीं आती है ऑफिस, ये सारी चीजें बहुत कुछ बोल दिया। तो मेरा दिमाग खराब हो गया उस टाइम पे ये कि यार बहुत यहाँ तो ज्यादा, नहीं। ये हाँ बहुत, ये वहां पे भी सॉरी हुआ है क्या? इंटरप्ट करने के लिए, ये बहुत ज्यादा हुआ है यार। आती नहीं है, कहाँ रहती है, आती नहीं है, मतलब ये एग्जैक्टली। बहुत ज्यादा। तुमको क्या करना, हमारा फील्ड का काम है यार, तुमको क्या लेना देना वही। कि नहीं आ रहे। अरे इवन आना नहीं आना ही समय तो ठीक, टाइम पे नहीं आ रही है, 11 बजे, 11:10 की क्यों आ रही है, 11 बजे क्यों नहीं आ रही है, बहुत सारी चीजें थी। तो मेरे दिमाग में एक चीज थी कि यार यहाँ तो नहीं रहना है, क्योंकि बिकॉज द मेरा जो घर था वहां से आई यूज टू गो टू 12 किलोमीटर्स वहां से। तो आई थॉट दिस द परफेक्ट टाइम टू चेंज माई मेंटर। और एंड सबसे अच्छी चीज होती है इफ यू हैव द बैक ऑफ योर आईएएस ऑफिसर ना, तो तुम कुछ भी कर सकते हो जीवन में, वो सबसे सेट हम्म। होता है वो मामला। तो आई मतलब आई वेंट टू सीईओ सर, एंड कि मेरे को नया नया जिला पंचायत ऑफिस बना था उस टाइम पे, तो मैंने अपने सीईओ को बोला कि मुझे यहाँ पे एक छोटा सा स्पेस चाहिए बस। तो ठीक है, वो कभी मेरा कभी कोई और बैठ जाता था, कभी कुछ होता था, बट आई गॉट दैट स्पेस। तो उसके बाद से क्या हुआ कि मतलब कुछ भी होता था तो दे यूज्ड टू कॉल मी, आईटीआई पीपल यूज्ड टू कॉल मी, पहले मेरे को पूजा पूजा करके बोलते थे, देन दे स्टार्टेड कॉलिंग मी मैडम मैडम, मैडम। वो सर से काम करवा दो, वो सर से साइन करवानी है। तो एक बार ऐसा हुआ, उन्होंने मुझे दिया संकल्प का ही कुछ एक्सपेंसेस का फाइल साइन करवाना था। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप करवा दीजिएगा। तो मैंने बोल तो दिया कि हाँ मैं करवा दूंगी, बट आई रियली वांटेड कि यार ये अपना काम खुद क्यों नहीं कर रहे। तो मैंने जाके सर को बोला, सीईओ सर को मैंने बोला कि मैंने उनसे डीएससी की साइन वाइन करवा ली। फिर मैंने बोला सर ये आईटीआई वालों का संकल्प का कुछ एक्सपेंडिचर है, लेकिन वैसे वो यूजुअली क्या होता है सीईओ सर, मैं खुद भी उनको डॉक्यूमेंट देती थी तो वो साइन कर देते थे कि चलो ठीक है क्या है जो कुछ भी है, कभी ऐसे क्वेश्चन नहीं किया कि क्या है समथिंग लाइक दैट। दैट टाइम आई टोल्ड हिम स्पेसिफिकली कि सर ये एक्सपेंसेस का कुछ है, बिल्स बिल्स का मेरे को बहुत ज्यादा पता नहीं है, इट विल बी बेटर इफ यू आस्क द आईटीआई पीपल इटसेल्फ। तो उन्होंने बोला ठीक है तो तुम इसको साइड में रख दो। तो फिर मैंने आईटीआई वालों को फोन करके बोला कि सर वो सर ने तो साइन नहीं किया, वो तो कुछ कुछ वेरिफिकेशन मांग रहे हैं, एक बार आप जाके बात कर लेना। तो दैट वाज द बेस्ट टाइमिंग कि सर ने पहले पहले वो गए, सर ने कहा कि यार तुम अभी बताओ यार, अभी तो यार तुम शाम के टाइम मत आया करो, तुम सुबह आना, मैं तुमसे सुबह डिस्कस करूंगा ये चीज। फिर वो अगले दिन सुबह आए, वो था भी 12-15 किलोमीटर ना, तो उनको आने जाने में बहुत ऐसा होता था। फिर वो दोबारा आए, सुबह आए, तो बोले कि यार तुम सुबह क्यों आते हो यार, मेरी मीटिंग्स रहती है इस टाइम पे यार, तुम ऐसा करो शाम को आओ वापस, मैं आराम से डिस्कस करूंगा। फिर वो शाम को गए, लाइक यार तुम्हें दिख नहीं रहा है, हेल्ड अप सो मच, मैं कैसे अभी इसको करूँ, इतनी सारी चीजें, ऐसा करो तुम किसी और को बता दो। तुम ना, उन्होंने पता है किसी और को असाइन कर दिया, लिटरली ही डिडंट साइन, उन्होंने किसी और को असाइन कर दिया कि तुम पहले इसको समझाओ। और वो जो मैडम थी वो बिल्कुल पीछे पड़ गई कि अच्छा ये एक्सपेंस है तो पिछले महीने का भी बताओ, पिछले के पिछले महीने का भी बताओ। फिर वो पूरा उनको मतलब बढ़िया लग रहा है भयंकर तरीके से। तो मेरे को तो ऐसा था कि गुड, आईटीआई वाले फाइनली कुछ काम कर रहे हैं इधर उधर घूम के। देन यूज्ड टू कॉल मी मैडम आप करवा दो ना मैम, कुछ भी कर दो ना मैम, आप करवा दो ऐसे करके। मैंने बोला सर आप देख लो, मैं बिल बिल मेरे को समझ में नहीं आता। तो दिस वाज द थिंग, मतलब आई रियली एंजॉयड। तो बहुत मजा आया कि फाइनल मतलब सीईओ सर को मैंने डायरेक्टली बताया भी नहीं था कि ऐसा कुछ चल रहा है मेरा आईटीआई के साथ कुछ, बट पता नहीं उनको बहुत मजे लिए उन्होंने भी, तो सही था सब। अलग से डिस्ट्रिक्ट फीलिंग आई होगी। अरे बहुत बहुत मजा आया मेरे को। Okay, Swadesh, anyone? आई थिंक मतलब मैं बहुत अच्छी स्टोरी टेलर तो नहीं हूँ, Okay. बट एक बहुत ही वियर्ड और फनी सा इंसिडेंट था। डिस्ट्रिक्ट में नॉर्मल कोई मीटिंग चल रही थी एंड देयर वर पीपल फ्रॉम 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। आई थिंक पीडब्ल्यूडी वाले थे, फॉरेस्ट वाले थे, एंड देयर वाज वन मोर डिपार्टमेंट। एंड एक आधा घंटे का डिस्कशन हुआ था कि पेड़ की टहनी कौन काटेगा, क्यों, क्योंकि एक डिपार्टमेंट का कहना था कि एक पर्टिकुलर मेजरमेंट, लेट्स से वो मेजरमेंट 1 मीटर था, कि 1 मीटर से ज्यादा अगर टहनी बढ़ जाती है तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट काटेगा।
अगर वो टहनी लाइट बल्ब के सामने आ जाती है तो इलेक्ट्रिसिटी वाला डिपार्टमेंट काटेगा। एंड देयर वाज आधे घंटे का डिस्कशन ऑन दिस थिंग कि पेड़ की जो टहनी बढ़ गई है वो कौन काटेगा। एंड देन काफी टाइम हो गया, रेनी सीजन चल रहा था, आई थिंक ये लास्ट ईयर की बात है, एंड वो टहनी और भी ज्यादा बढ़ गई। तो देन देयर वाज अनदर डिपार्टमेंट इन द पिक्चर, वो भी आ गया कि द थ्री डिपार्टमेंट स्टार्टेड सेइंग कि अब तो ये इतनी बड़ी हो गई है, अब तो ये वो वाला डिपार्टमेंट काटेगा। तो इट वाज सच अ फनी थिंक कि भाई कोई एक बंदा जाके डीएम वाज लाइक कि मैं ही काट देता हूँ, ये क्या मतलब एक टहनी काटने के लिए यू आर आर्ग्यूइंग सो मच। तो हाँ, आई गेस यही मुझे याद आ रहा है फनी इंसिडेंट। बट यस, इट्स सॉर्ट ऑफ अ सटायर आल्सो ऑन आवर गवर्नेंस और ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम कि भाई क्या है, एक बहुत ही मिनिमल सा जो पब्लिक वर्क का काम है, यू आर जस्ट पासिंग इट अराउंड। और डिस्कशन मतलब खाली ये नहीं कि मीटिंग में हो रहा है, बकायदा फाइल्स मूव हो रही हैं फ्रॉम वन डिपार्टमेंट ऑफिस टू अनदर डिपार्टमेंट। सो इट्स दैट स्टेट ऑफ अफेयर्स। दिस इज एक्चुअली लैक ऑफ कन्वर्जेंस ना, यहीं पे वो हम कोट कर सकते हैं कि मतलब हम साइलोज में काम करना है, हम अपना अपना देखेंगे, हमको हाँ किसी से मिलके काम नहीं करना। And the ironic part would be, ये files pass कराने में the number of papers that are printed on, it would be more. उसके लिए ज्यादा टहनियां कटी होंगी ऐसे। हाँ I used to collect all these papers to me. I used to write on the back कि पीछे Yeah, इसके पीछे कुछ नोट सॉल्व करेंगे। या तो कभी भी ऐसा होता ऑफिसर्स था तो भी, उसे इकट्ठा हाँ करके लाते, काम का नहीं ऑफिसर्स होता खुद वो। भी अपना रिसाइकिल करते हैं। एंड आई थिंक बीच में हाँ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टार्टेड दिस पेपर मैश थिंग आल्सो। सो बहुत बीच में ये हाँ, आया था पेपर कि मशीन। सारे पेपर्स जो हैं, वेस्ट पेपर्स, उनको कलेक्ट करके एसएचजीस को देना है सो दैट दे कैन मेक देयर ओन पेपर मैशे प्रोडक्ट्स। बट हाँ, कुछ कुछ ऐसा होता रहता है। okay, good. Any final experiences, or we can close the session for tonight? I think there is one more thing that I can talk Sure, about. please. Not just so fellowship has also given, like I also said before, कि across different states जो हम बातें करते हैं, and although group जो हमारा main वाला group है उस पे भी काफी सारा discussion हो जाता है, but then even एक IIM में जैसे there are 4 to 5 states were there, so उनके साथ जो एक अलग तरीके की camaraderie और एक collaboration जो मिलता है, and there is a lot of things to learn also from others. And at least हम IMK में we are working on this newsletter thing, तो उसमें there is a lot of brainstorming and lots of learning from people from different states, Yeah. different backgrounds, and उनके अपने experiences हैं। And I think if I can say कि fellowship ने मुझे क्या सिखाया, तो one thing would be Canva पे designing करना तो सिखाया है fellowship ने मुझे। क्योंकि हाँ, न्यूज़लेटर में Even काफी next कुछ। edition, I have collaborated with Gautam. Okay. श्योर। यस, तो The हाँ। article is right there on the other slide. Yeah, so one of those things. That's it from my side. All right then. Well, thank you so much everyone for joining us tonight.